Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita session. So we will begin today's session. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakalam Shri Gurun Vaishnavansacha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanchacha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा सो तो हमारा जो भगवत गीता है उसको हम बिगिन करते हैं लास्ट सेशन में हमने भगवत गीता की जो इंट्रोडक्शन है उसे कंप्लीट किया था और आज से हम भगवत गीता को स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर 1 तो जो चैप्टर उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा भगवद गीता के बारे में एक बार दोबारा से संक्षिप्त में बता देता हूँ क्योंकि हम चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं श्लोक और चैप्टर्स और उसमें ट्रांसलेशंस और श्रील प्रभुपाद के परपट्स तो हम तो जो भगवद गीता है इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 3 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया जाता है जो 6 चैप्टर्स के 3 सेक्शंस में इसको हम इसका विभाजन करते हैं जो पहले जो 6 चैप्टर्स हैं उसको हम कर्म योग के सेक्शन में उसको विभाजन किया जाता है और उस जो अगले 6 चैप्टर्स हैं 7 से 12 उसको हम भक्ति योग के चैप्टर्स में विभाजन करते हैं और जो 13 से 18 चैप्टर्स हैं और उसको हम ज्ञान योग का जो सेक्शन है उसमें हम उसको विभाजित करते हैं और जो पहला चैप्टर है इट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र तो यहाँ से भगवत गीता जो है शुरू होती है और जो उसका पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं इसके जो पहले की जो हिस्ट्री है वो हमने हमारा जो सेटिंग द सीन था टॉपिक उस पे हमने कवर किया था तो इसमें क्या है कि अब कौरवों और पांडवों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पीस जो ट्रीटी है वो नहीं हो पा रही है भगवान ने भी लास्ट ट्राई कर चुके हैं और अब सिर्फ एक ही जो उपाय बचा है वो ये है कि अब दोनों जो पक्ष हैं वो अब लड़ाई करेंगे युद्ध ही सिर्फ एक पक्ष रह जाता है और इसमें अब सब कुछ सेट हो चुका है और जो लड़ाई करने का जो मैदान है उसको कुरुक्षेत्र जो है स्थान उसको चुना जाता है क्योंकि उसको धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है और वो क्यों है वो हम अभी पढ़ेंगे पहले श्लोक में ही आता है ये कि कुरुक्षेत्र का जो मीनिंग है और उसको क्यों चुना गया और अब ये नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग स्टार्ट्स क्योंकि अब लड़ाई होने वाली है ना और अब लड़ाई इट इज नाउ जस्ट ऑन द वर्ज और वो एक तरफ कौरव हैं
एक तरफ पांडव हैं और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन के जो सारथी जिन्होंने बनने का स्वीकार किया है। और तो अब हम जो ये सीन अभी सेट है और अब हम इसको पढ़ते हैं कि अब क्या होता है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। इससे पहले अगर आपका कोई प्रश्न है इंट्रोडक्शन से तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे अगर कोई पुराने प्रश्न हैं तो वो रह ना जाए। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है या जो हम कुछ पूछना चाहते हैं इंट्रोडक्शन से तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू रीडिंग भगवद गीता। ओके, सो वी विल रीड चैप्टर 1 नाउ। तो जो पहला अध्याय है उसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। और इसका जो पहला श्लोक है वो भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो जो धृतराष्ट्र हैं वो पूछते हैं कि हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जब युद्ध स्थल में एकाग्रित हुए तो उन्होंने क्या किया। तो जो आचार्य हैं वो इस चीज का इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि देखिए ये तो प्रश्न ही गलत है एक तरह से, कि आप सोच के देखेंगे कि जैसे कि अगर कोई युद्ध स्थल में आ गए हैं, एक तरफ कौरव है एक तरफ पांडव हैं, तो ये चीज सबसे ऑब्वियस है कि वो अब युद्ध लड़ने लगे हैं या फिर युद्ध लड़ेंगे या फिर युद्ध लड़ा जाएगा। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट एनीबडी वुड एवर अंडरस्टैंड और एनीबडी वुड एवर आस्क, है ना, कि अब उन्होंने क्या किया। ये तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने खाना बनाया, सब कुछ कर लिया, भगवान को भूख लगा दिया, प्लेट कर ली, उसमें रख लिया और हम बैठ गए हैं, अब हमने क्या किया। तो इसका जो बहुत ही ऑब्वियस उत्तर है कि वही होगा कि हमने खाना खाया। तो बट धृतराष्ट्र अब यहाँ पे सवाल कर रहे हैं संजय से कि आपने क्या किया। तो वो उत्सुक थे जानने के लिए, क्योंकि जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज थी युद्ध को रोकने की, वो अब सारी खत्म हो चुकी थी। बट धृतराष्ट्र के पास अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि हो सकता है कि जो मेरे जो पुत्र हैं वो जब पांडवों के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई एक आधा चांस हो कि किसी ने उनको समझा लिया हो कि युद्ध वाकई में क्या पता ना हुआ हो, और फिर ऐसा हो सकता है कि या तो युद्ध टल गया हो। और क्योंकि यहाँ पे जो धृतराष्ट्र तो युद्ध स्थल में नहीं थे, वो तो थे हस्तिनापुर में, और युद्ध लड़ा जा रहा है कुरुक्षेत्र में। और जो आचार्य हैं वो एक और टिप्पणी करते हैं कि ये जो अब सुनाया जा रहा है, संजय एक्चुअली धृतराष्ट्र के पास हैं और संजय के पास एक दिव्य दृष्टि है जो कि उनके गुरु महाराज जो श्रील व्यासदेव जी हैं उनसे उनको प्राप्त हुई थी एक लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए, कि जो युद्ध है उसका लाइव टेलीकास्ट जो संजय देख सकते हैं, तो उसकी दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई थी। इट इज लाइक कि जैसे हम क्रिकेट का लाइव मैच देखते हैं या फिर हम कोई और लाइव जैसे 26 जनवरी की कोई हम परेड देखते हैं सुबह, तो ऐसी कोई, या फिर लाइव न्यूज देखते हैं, तो ऐसे ही संजय को ये जो दृष्टि हुई थी उनको मिली थी उनके गुरु महाराज से जो कि हैं श्रील व्यासदेव, और इसकी हेल्प से वो धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं। और एक और टिप्पणी आती है कि संजय भी एक्चुअली युद्ध लड़ रहे थे। संजय ने पहले 10 दिन युद्ध लड़ा था और वो 10वें दिन जब एक्चुअली जब भीष्म पितामह जी का पतन हो जाता है 10वें दिन, और उसके बाद जब कर्ण आ जाते हैं, कर्ण नहीं, जब उसके बाद द्रोणाचार्य आ जाते हैं उनके एज अ कमांडर इन चीफ, तो उसके बाद जो संजय हैं वो वापस चले जाते हैं धृतराष्ट्र के पास। और उस टाइम पे
तो ये धृतराष्ट्र हैं जो वो संजय से ये पूछते हैं कि आप क्या हुआ और क्या किया गया। तो ये एक तरह से बैकग्राउंड है जो हमको नहीं मिलता, या फिर जो हमको महाभारत में सुनने को मिलता है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उन्होंने जो कुरुक्षेत्र का जो नाम है धर्म क्षेत्र दिया है, तो इसको क्यों दिया है तो उसके बारे में जानते हैं। तो परपट पढ़ते हैं पहले। भगवद गीता is widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya, glorification of the Gita. There it is said that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. तो जिसका हम अभी तक स्ट्रेस देते आ रहे हैं कि एज इट इज है, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और पहले भी बताया है प्रभुपाद ने, कि हमको जो भगवत गीता है वो कह रहे हैं वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़नी चाहिए। स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब जैसे कि हम अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो वो लॉ बुक्स होती हैं जो उसको वो बहुत ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि उस लॉ की बुक्स को, उस लॉ के रेफरेंसेस को जो एडवोकेट है फिर जो स्टूडेंट है उसको उसे रेफर करना होता है, उसको उसे वहां पे एज एन एग्जांपल दर्शाना होता है कोर्ट केसेस में एवरीथिंग। तो इस तरीके से हमको वो भगवत गीता जो है पढ़नी चाहिए, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, नॉट दैट हम किसी की भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। और ये हमने पहले भी एम्फेसाइज प्रभुपाद करते हैं इंट्रोडक्शन में भी कि इट शुड ऑलवेज बी रेड इन अ बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा। और हम श्रील प्रभुपाद के शेल्टर में एकदम सेफ हैं इस तरह से। Who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teachings is understood by Arjun, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand Bhagavad Gita in that line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. ये हमने गीता महात्म्य में भी पढ़ा था कि भगवद गीता जो है वो सारे वेदों का, जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, उन सबका जो निचोड़ है वो भगवद गीता में तो आता है, और भगवद गीता में वो भी है जो हमको और कहीं नहीं मिलेगा। That is specific standard of the Gita. It is a perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. तो यहाँ पे प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि it is a religious study or it is a cult study or it is something like that. वो कह रहे हैं कि this is a science. It is a theistic science. तो साइंस का जो वर्ड, जो प्रयोग है प्रभुपाद करते हैं यहाँ पे, तो साइंस का वर्ड क्यों यूज किया गया है कि जैसे कि साइंस को हम समझ सकते हैं कि दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, दैट कैन बी एंड विच रिमेन्स द सेम every time that experiment has been repeated. So that in that manner the Shastras and the Bhagavad Gita is a science. It is not something that it is just philosophy, or it is something that कि okay मेरे को पढ़ने में अच्छा लगा but practically तो possible नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं वो सुनने के लिए अच्छी है, लिखने के लिए अच्छी है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट भगवद गीता इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग book that we can read and understand because it is directly spoken by the Supreme Lord. और जो directions वो सबको देना चाहते हैं वो यहाँ पे है। जो directions वो अगर मेरे को अगर मिले भगवान और अगर कुछ देना चाहें तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे यही बोलेंगे कि पहले इसे पढ़ो, यही मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, यही मेरी डायरेक्शंस हैं। एंड अर्जुन वो पात्र बनते हैं हमारे लिए ताकि हम ये सब जान सकें। The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjay as described in the Mahabharata form the basic principle of this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind.
The word Dharam Kshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjun. Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. तो जैसे कि हमने बताया था कि धृतराष्ट्र was very doubtful कि उनके जो पुत्र हैं वो देखो वो डरे तो पहले से हुए ही थे कि ये युद्ध हो ना हो, बट मेरे जो जो पुत्र हैं उनकी विजय को प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। और अंदर से वो जानते थे कि क्या हाशिर होने वाला है और इसका जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। In his doubt, he inquired from his secretary Sanjay, what did they do? He was confident that both his sons and his sons of his younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. है ना कि it was already determined कि अब वो आ ही गए हैं युद्ध क्षेत्र में तो लड़ेंगे और तो उसके बाद और तो कुछ करेंगे नहीं। Still, his inquiry is insignificant. He did not want a compromise between the cousins, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield. Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship. तो कुरुक्षेत्र को भी धाम बोला जाता है, कुरुक्षेत्र धाम। Even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. तो जैसे कि हो ही सकता है कि अगर कोई पापी व्यक्ति अगर धाम जाता है तो वो डर जाते हैं कि हो सकता है कि धाम के इन्फ्लुएंस से मुझे कुछ हो ना जाए या फिर मैं सुधर ही ना जाऊं। तो जो ये जो इन्फ्लुएंस था इसका भी जो डर था धृतराष्ट्र को था कि उसके जो पुत्र हैं उसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस ना हो जाए या फिर वो संधि करने को नाम वो मान जाएं और बस लड़ाई जरूर लड़ने। तो इसका उसको डर था। He knew very well that this would influence Arjun and the sons of Pandu favorably because by nature they were all virtuous. तो जो धर्म क्षेत्र है वो पॉजिटिवली जो अर्जुन है और जो भगवान है उस क्योंकि भगवान स्वयं वहां पे प्रेजेंट हैं तो एक वो धर्म क्षेत्र इसलिए कहलाता है। दूसरा क्योंकि वो अर्जुन की तरफ हैं तो उनकी तरफ उनका जो वो ज्यादा फेवर किया जाएगा उनकी साइड को क्योंकि भगवान उनकी तरफ प्रेजेंट है। Because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyas. And therefore, by the mercy of Vyas, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट हमको समझ में आती है कि जैसे कि जो पांडव और कौरव हैं एक्चुअली वो थे एक ही फैमिली के। धृतराष्ट्र के जो भाई थे पांडु उन्हीं के पुत्र थे ना, एक तरह से ताए चाचे के जैसे बेटे होते हैं। तो उसको हम ऐसे नहीं कहते कि आप अलग फैमिली हैं या फिर कोई और फैमिली है। और बट यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या कहते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, तो वो पहले उसका विभाजन कर देते हैं। तो ये भी हम एक तरह से एक वे है जो आचार्य हैं हमको बताते हैं कि उन्होंने पहले ही इस चीज को अलग करा कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वो अपने पुत्रों को कुरु समझते थे बट पांडु के पुत्र को वो कुरु वंश नहीं देना चाहते थे। इसीलिए तो सारा कुछ लड़ाई हो रही है ना, क्योंकि इट इज ऑल फैमिली वॉर और धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family. आ गया वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं। But Dhritarashtra's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandus from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion Sri Krishna was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhan and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthir would be established by the Lord. This is the significance of the word Dharam Kshetra and Kurukshetra.
apart from their historical and Vedic importance. तो ये है importance। और इसमें जो आचार्य हैं वो ये भी बताते हैं कि जैसे कि भगवत गीता का जो पहला श्लोक है उसका जो पहला वर्ड है वो शुरू होता है धर्म पे, है ना, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामकः पांडव, मतलब मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने चैव किम अकुर्वत संजय, क्या किया। तो जो पहला वर्ड है वो है धर्म। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि जो भगवत गीता है वो हमको हमारा धर्म समझाती है, कि हमारा जो धर्म है इसके बारे में प्रभुपाद भी, हमने धर्म के बारे में काफी अच्छे से चर्चा भी करी थी कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म उसका मतलब क्या है, इटर्नल धर्म है, और उसका हमने उसको बहुत ही गहराई से उसके बारे में चर्चा करी थी। और भगवत गीता का जो पहला वर्ड है वो भी धर्म है। और तो हम इसके बारे में ये जानते हैं कि भगवत गीता हमको हमारा जो धर्म है उसके बारे में हमको बताती है, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, व्हाट इज द धर्म ऑफ अ सोल, सोल के लेवल पे हमको बताती है, हमारे बॉडी के लेवल पे नहीं हमको बताती। तो ये है हमारा पहला श्लोक। और तो जिस तरह से धर्म है भगवत गीता का पहला, इसी प्रकार से जो अंत होता है जो भगवत गीता का, वो होता है भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवत गीता शुरुआत होती है धर्म, और उसका जो उत्तर है वो है भगवान कृष्ण। तो जो एंड है भगवत गीता का, दैट इज भगवान के ऊपर होता है। यत्र योगेश्वर पार्थो यत्र पार्थो, मैं भूल गया उस श्लोक को। तो वो उसमें ये आता है कि वो जो भगवत गीता का एंड है वो भगवान के ऊपर होता है। तो धर्म इज कृष्ण, धर्म इज गॉड। इस तरह से इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। Sanjay said, "O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words." अब संजय क्या कह रहे हैं कि हे राजन, कि अभी सारा कुछ ऑब्जर्व करने के बाद जो जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास, और वो उनसे कुछ जो वर्ड्स हैं वो कहते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। और तो ये अब क्या हो रहा है कि अब जो अगले कुछ श्लोक हैं वो हमको सेट बता रहे हैं, सेटिंग द सीन बता रहे हैं, कि अब ऑब्जर्व किया जा रहा है आर्मीज को कि अब इधर कौन है उधर कौन है, इधर बहुत सारे महारथी हैं उधर भी बहुत सारे महारथी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सार्केस्टिकली यहाँ पे किंग दुर्योधन बोला गया है, बट एक्चुअल में दुर्योधन तो प्रिंस थे, क्योंकि अभी किंग तो धृतराष्ट्र ही है। तो यहाँ पे किंग दुर्योधन बोलते हैं संजय दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन एक तरह से राजा की जो है वो पाना चाहते थे, और ही वॉज अ प्रिंस एंड वो दुर्योधन के बाद वही राजा बनना चाहते थे। और इस तरफ से तो जो जो राजा हैं वो दुर्योधन क्या है, तो इस तरह से उनको बोला गया है किंग दुर्योधन। एंड वेंट टू हिज टीचर, कौन, द्रोणाचार्य के पास, और वो जाते हैं और कुछ वर्ड्स कहते हैं। Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjay could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjay wanted, therefore, to encourage the despondent king, and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjay therefore informed the king that his son Duryodhan, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief Dronacharya to inform him of the real position. Although Duryodhan is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician, but Duryodhan's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. So,
जैसे कि यहाँ पे बताया कि दुर्योधन को ऑल्सो किंग मेंशन किया गया है, बट वो फिर भी अब वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। मतलब अगर राजा किसी के पास जा रहा है तो मतलब कोई प्रॉब्लम होगी है ना, कि युद्ध शुरू होने वाला है और मैं किसी के पास जा रहा हूँ कुछ वार्तालाप करने, कुछ कुछ बात करने, कि ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे हमारी आर्मी है, और इतने सारे महारथी उधर हैं, इतने सारे महारथी इधर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फियरफुल सिचुएशन दुर्योधन उसमें था। और उसके बाद वो जो आचार्य हैं वो ये बताते हैं कि क्योंकि इतनी टेंस सिचुएशन थी, इतनी फियरफुल सिचुएशन थी दुर्योधन के लिए, ऑल्दो ही वाज अ वेरी ग्रेट क्षत्रिय, doesn't mean that he was a coward, but he was still uh, on the verge that कि it is a serious situation। और अब हम देखें क्योंकि वहां पे उनको उसको डाउट था कि अब क्या होगा और मेरी विजय होगी भी कि नहीं, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। पश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं युद्धं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by our intelligent disciple, the son of Drupad. Duryodhan, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahman commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupad, the father of Draupadi, who was Arjun's wife. As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet, as a liberal Brahman, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupad, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. तो अब यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री आती है पिक्चर में, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अब दुर्योधन भी लाइक सार्केस्टिक मैनर, या फिर आप कह लीजिए कि लाइक अ पॉलिटिशियन, वो क्या कह रहे हैं, वो द्रोणाचार्य को ये बता रहे हैं कि हे द्रोणाचार्य, आप देखिए कि आपके सामने कितनी बड़ी आर्मी है पांडवों की, जो कि उनके कमांडर इन चीफ धृष्टद्युम्न के छत्र छाया में खड़ी है और लड़ने को तैयार है। तो वो किसी को भी नाम ले सकते थे, अर्जुन का नाम ले सकते थे, युधिष्ठिर का नाम ले सकते थे, भीम का नाम ले सकते थे, आगे जाके आएगा भी। और बट वो नाम लेते हैं धृष्टद्युम्न का, किस तरह से, लाइक अ पॉलिटिशियन और अ सार्केस्टिक मैनर, कि देखो आपने धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद का पुत्र है, और आप और द्रुपद एक दूसरे के दुश्मन हो, बट उसके बावजूद भी आपने धृष्टद्युम्न को अपना छात्र बनाया, अपना शिष्य बनाया, और उसको आपने पढ़ाया, और उसको आपने ये विद्या दी, सारी जो क्षत्रिय विद्या है आपने उसे दी। अब ये सब कुछ आप ही के ऊपर वापस आने वाला है, तो अब आप देखो इसको मतलब सीरियसनेस, इसकी सिचुएशन को समझो, और इसको ऐसे भूल मत जाना, इसको सॉल्व करके रखना। तो ये दुर्योधन का पीछे से मोटिव है बताने का बेसिकली। Now on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx. And after having learned the art from Dronacharya, द्रोणाचार्य ने स्वयं ही सिखाई है। और द्रुपद ने एक यज्ञ किया था जिसमें, अब द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में एक काइंड ऑफ एक विवाद हुआ था, उसमें अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट इवेंचुअली हम ये आपको ये बता देता हूँ कि जैसे द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे उनको जिससे धृष्टद्युम्न आए, और वो वरदान ये था कि इस यज्ञ से जो आएंगे वो द्रोणाचार्य को मार सकेंगे। तो इस तरह से तो ये बेनेडिक्शन उनको मिली थी। Duryodhan pointed out the mistake of Dronacharya's so that he might be alert and uncompromising in the fighting. But by this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in the battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. तो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने धृष्टद्युम्न के साथ लीनियंसी बरती थी, आप पांडवों के साथ मत करना, क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा प्रिय हैं आपके बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, और अर्जुन आपके अति प्रिय शिष्य है, सबसे प्रिय जो है, और जिसको आप द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड कहते हैं। Arjun especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhan also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. Atra Shura Maheshwa Asa
Bhishmarjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharatha. Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhim and Arjun, great fighters like Yuyudhan, Virat, and Drupad. But even though Drishtadyum was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were the causes of fear. There are men mentioned by Duryodhan as great stumbling blocks on the path of victory because each and every one of them was as formidable as Bhim and Arjun. He knew the strength of Bhim and Arjun and thus he compared the others with them. There are दृष्टकेतुश्चेकितनः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवाः. There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chekitan, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoj and Shaibya. ट्रांसलेशन अगले तो हम कुछ वर्सेस की सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamaj, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. But for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. तो अब अर्जुन है, सॉरी दुर्योधन, अब वो अपनी फोर्स के बारे में बताने वाला है कि अब मेरे पास कौन कौन महारथी हैं. There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, and the sons of Somadat called Bhurishwar, who are always victorious in battle. But Duryodhan mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhan, Ashwathama is the son of Dronacharya, and Somadati or Bhurishwar is the son of king of Bahalikas. Karna is the half brother of Arjun as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. Anya translation of 1.9. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapon and all are experienced in military science. Purport. As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritvarma, and Shalya, all are determined to lay down their lives for Duryodhan's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhan. Duryodhan was, of course, confident of his victory on account of the above-mentioned combined strength of his friends. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhim, is limited. Herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhan. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhim, who is like a fig in the presence of Bhishma. Duryodhan was always envious of Bhim because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was also a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. 1.11. All of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. Purport. Duryodhan, after praising the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma Dev was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man, so everyone must especially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fight, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side.
Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. Duryodhan clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishma Dev. He was confident of the full support of Bhishma Dev and Dronacharya in the battle because he knew that they did not even speak a word when Arjun's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up as they had done during the gambling performances. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको ऐसे ही कॉन्फिडेंस था भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर इस प्रकार से भीष्म और द्रोणाचार्य जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वो प्रेजेंट थे वहां पे, है ना. द होल सारी सभा वहां पे प्रेजेंट थी. धृतराष्ट्र प्रेजेंट थे, भीष्म थे, कर्ण वो तो थे ही जिन जो ऑफेंडर्स थे, और बट वो भी थे जो सिर्फ देख रहे थे एंड दे वर साइलेंट, है ना. और द्रौपदी ने सबको पुकार लगाई हेल्प के लिए. पांडवास वर हेल्पलेस बट दोज हु कुड हैव हेल्प दे आल्सो डिड नॉट हेल्प, और वो वहां पे चुप रह जाते हैं. और तो इसी का एग्जाम्पल जैसे प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं कि जैसे कि वहां पे वो चुप रह गए, वहां पे कुछ नहीं बोले, तो उनको विश्वास था दुर्योधन को कि यहाँ पे भी वो मेरा साथ दे ही देंगे, क्योंकि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं रहूंगा इस थ्रोन के ऊपर जो भी होगा उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा. और जो द्रोणाचार्य हैं वो ऑलरेडी ही वाज ऋणी बिकॉज ही वाज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय दुर्योधन एंड और आल्सो and similarly Kripacharya also, both were financially supported by the like this, like a government servant, है ना, government servant, like the government was of Kauravas, एंड जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जैसे कि भीष्म, नॉट लाइक द्रोणाचार्य एंड कृपाचार्य, तो वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट का साथ देंगे. तो इस तरह से बिकॉज दे वो उनके ऋणी हैं, तो इस तरह से. तो आगे पढ़ते हैं 11.12. Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhan joy. तो अब यहाँ पे तो एक जो सीन है वो थोड़ा सा चेंज होता है. अब जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो खत्म हो गई कि उधर कौन है इधर कौन है. अब नाउ देयर इज द conch shells are now being blown. तो जो सबके अपने अपने वो हैं शंख हैं, तो वो शंखनाद करते हैं सारे. भीष्म करते हैं, और उसके बाद भगवान कृष्ण करते हैं, और उसके बाद पांचों पांडव करते हैं. The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhan, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbol of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhan that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. तो यहाँ पे भी जो आचार्य हैं वो टीका ये करते हैं कि भीष्म ने इतनी जोर से इसलिए करा ताकि दुर्योधन को पता लग जाए कि मेरे होते हुए भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि उस तरफ कौन है देख लो एक बार. वहां पे उस तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं जो अर्जुन और पांडवों की तरफ है, तो उनके होते हुए किसका पास चांस है कि वो विजय प्राप्त कर ले. उनके अगेंस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता. तो एक तरह से लाइक अ सार्केस्टिक मैनर, तो वो इतनी जोर से अपना शंखनाद करते हैं. Hmm. 1.13. After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. 1.14. On the other side, both Lords Krishna and Arjun, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. क्या है? तथा श्वेतेर हरेर युक्ते महति शन्यदे शन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव
दिव्य शंखौ प्रदाद मतु। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? दिव्य शंख। वहां पे शंख नहीं बोला है, ये ऊपर बोला है देखिए कॉन्ग शेल, इधर बोला ट्रांसेंडेंटल कॉन्ग शेल। तो सो दिस इज द डिफरेंस दैट उधर जो शंखनाद हो रहा है वो नॉर्मल शंखनाद है, इधर क्या है? दिव्य शंख है, लाइक ट्रांसेंडेंटल, बिकॉज इट इज नाउ विद लॉर्ड कृष्णा एंड पांडवास। तो प्रभुपाद पर्पट में यही कह रहे हैं, in contrast with the conch shell blown by Bhishma Dev, the conch shells in the hand of Krishna and Arjun are described as transcendental. The sounding of the transcendental conch shells indicated that there was no hope of victory for the other sides because Krishna was on the side of Pandavas. Jayastu Pandu Putranam Yesham Pakshe Janardana. Victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. तो ये वो श्लोक है जो मैं आपको कोट कर रहा था. This is the last श्लोक of Bhagavad Gita, 18.78. Janardana. Jayastu Pandu Putra Nam Yesham Pakshe Janardana. So Janardana is the तो ये वो श्लोक आता है. और क्या बता रहे प्रभुपाद दैट, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भी बहुत लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बट लक्ष्मी जी कभी भी अपने हस्बैंड नारायण जी के बिना कभी भी नहीं होती. तो यू शुड ऑलवेज वर्शिप लक्ष्मी नारायण. हम दिवाली पे भी हम देखते हैं कि लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, कि लक्ष्मी आ जाए बट उनके साथ जो उनके पति हैं वो ना आए. तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए हमारे घर में, बट लक्ष्मी जी वहां पे आएंगी जहाँ पे उनके हस्बैंड आएंगे, जहाँ पे उनके हस्बैंड को इज्जत मिलती है. बहुत नॉर्मल तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज को कि एक वाइफ है जो, वो वहां तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगी जहाँ पे उनके हस्बैंड का निरादर होता है. तो इस तरह से हमें समझ सकते हैं कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून नेवर लिव्स अलोन विदाउट हर हस्बैंड, और जहां पे भगवान है वहां पे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज देयर ऑटोमेटिकली और ऑलरेडी इज देयर. और ब्रह्म संहिता में भी आता है कि सहस्र लक्ष्मी जो है वो जो भगवान की सेवा करने के लिए वेट करती हैं और सेवा में लगी हुई हैं. लैक्स एंड मिलियंस ऑफ लक्ष्मीज आर there for the service of the Lord in Vaikunt and in Golok. उनको वहां पे एंट्री नहीं मिलती, और गोलोक में लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिलती वहां पे, and she is waiting outside to serve the Lord. And so this is the position of the Lord. Therefore victory and fortune were awaiting Arjun as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjun. And this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. Text 1.15. तो अब यहाँ पे जो जितने भी कॉन्शल्स हैं उनके नाम आते हैं. पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजना पौंड्रम ददौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा. Lord Krishna blew his conch shell Panchajanya, Arjun blew the Devdutt, and Bhima and the voracious eater and performer of Herculean tasks blew his terrific conch shell called Pondra. पट. तो अब यहाँ पे जैसे कि जो नाम है कॉन्शेल्स के, भगवान के कॉन्शेल का नाम दिया गया है और अर्जुन के कॉन्शेल का नाम दिया गया है, और भीष्म के भी कॉन्शेल का जो नाम था वो दिया गया था मेरे ख्याल से. तो है ना, एक बार नहीं, उनका नाम नहीं दिया गया है, तो सिर्फ भगवान के कॉन्शेल का नाम दिया गया है और
जो 5 पांडव हैं उनके कौशल का नाम दिया जाता है। तो इसमें जो आचार्य हैं वो ये बताते हैं कि पूरी इतने लोगों ने जो है शंखनाद किया और कौशल अपने अपने बजाए, जो है शंख उन्होंने अपने अपने बजाए, बट जो नाम है भगवत गीता में वो सिर्फ इन 6 का आता है, कि भगवान का और अर्जुन और 5 पांडवों का। और जब युद्ध अंत होता है तो पूरे युद्ध में जो बच जाते हैं वो भी यही 6 हैं, कि भगवान रहते हैं और 5 पांडव। तो जो युद्ध है उसके बाद सिर्फ ये 5 बचते हैं और भगवान के साथ। तो इसलिए जो नाम है कौशल का वो भी इन्हीं का ही आता है। Lord Krishna is referred to as Rishikesh in this verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruttamam. Sarvopadhi Vinirmuktam Tatparatvena Nirmalam. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruttamam. The impersonalists cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. The Lord, situated in the hearts of all living entities, directs their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity. And in this case of a pure devotee, he directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjun, and thus his particular name of Rishikesha. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudan because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govind because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudev because he appeared as the son of Vasudev. His name is Devaki Nandan because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandan because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. His name is Partha Sarthi because he worked as a charioteer of his friend Arjun. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjun on the battlefield of Kurukshetra. Rishikesh, किस तरह से? Rishikesh means he is the owner of the senses. Arjun is referred to as Dhananjay in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. Similarly, Bhima is known as Vakrodra because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks, such as killing the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by the different personalities on the side of the Pandavas, beginning with lords, were all encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, not the presence of the Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of fortune. So they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sound of the conch shell. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthira Nakula Sahadevascha Sughoshamani Pushpakau Kashyascha Parameshva Asah Shikhandi cha Maharatha Drishtadyumno Viratascha Satyaki cha Parajita Drupado Draupadeyascha Sarvesha Prithipate Saubhadrascha Mahabahu Shankhan Dadhamu Prithak Prithak. King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijay. And Nakul, Sahadev blew the Sughosh and Mani Pushpak. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyum, Virat, and the unconquerable Satyaki, Drupad, and the sons of Draupadi. And others, O king, such as mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of kingdom was not very laudable. The signs already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle. तो यहाँ पे अब जितने भी जो अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि these are all signs कि पांडवों की विजय होने वाली है और कौरवों की पराजय.
तो देर वर वेरियस साइंस कि जहाँ पे जैसे ये शंखनाद होना और बहुत सारे साइंस आते हैं। अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर एक फ्लैग का होना जो हनुमान जी का है, और बहुत सारे साइंस आते हैं और कि जो ये बताते हैं कि पांडवों की ही विजय होने वाली है। The signs already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle, beginning with the grandsire Bhishma down to the grandsons like Abhimanyu and others, including from many states of the world. All were present there and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. तो ये हम तो जानते ही हैं कि जो परिणाम होने वाला है पूरे युद्ध का, कि सब मरने वाले हैं, सबका सबका वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और बचते हैं सिर्फ 5 पांडव और भगवान। The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. When Bhishma and the others on the side of Duryodhan blew their respective conch shells, there was no heart breaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas party. तो जैसे कि हमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब उन्होंने शंख बजाए तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है भगवत गीता में कि ओ पांडवों के भी हार्ट में धक धक हुई हो, ऐसा कुछ हुआ हो, बट मेंशन ये है कि इट वाइब्रेटिंग बोथ द स्काई एंड द अर्थ, इट शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ सन ऑफ धृतराष्ट्र, जब उनकी तरफ से शंखनाद हुआ। So this is also one of the signs of victory. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. तो द्रौपद क्या कह रहे हैं? One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. So this is the reason that कि उनके जो हार्ट्स हैं उनमें ऐसे धक धक हुई, the hearts were shattered, but not for the hearts of Pandavas, because they had complete surrender and protection for in the confidence in Lord Krishna. कि अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो उनको कोई मार नहीं सकता, और अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उनको कोई बचा नहीं सकता। इसका आता है अवश्य राखिबे कृष्णा। इसका मैं पूरा वो भूल गया कि उसमें पूरा जो श्लोक आता है कि वो क्या था कि अगर भगवान मारना चाहते हैं तो उनको कोई बचा नहीं सकता, और अगर भगवान बचाना चाहते हैं तो कोई उनको मार नहीं सकता। मेरे माइंड से स्किप हो गया तो, बट उसका जो ये है कि भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो ये है अवश्य राखिबे कृष्ण, चैतन्य चैतामृत में आता है ये। अगला पढ़ते हैं 1.20। At that time, Arjun, the sons of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. तो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो महाभारत का जो युद्ध है उसमें हनुमान जी भी थे। हनुमान जी जो रामायण के युग से उनको वो धरती पे ही हैं, धरती पे ही थे, और उन्होंने वो महाभारत के टाइम पे भी थे, और उन्होंने युद्ध भी लड़ा। तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो किसी को पता है कि वो युद्ध किस फॉर्म में लड़ा था उन्होंने? अगर किसी को नॉलेज हो इस चीज के बारे में तो बता सकते हैं। चैरियट पे फ्लैग लगा। तो माता जी बता रही हैं कि अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर जो चैरियट था वहां पे, और जो फ्लैग था वो हनुमान जी का था, और हनुमान जी भी वहां पे पर्सनली प्रेजेंट थे, अदृश्य बट पर्सनली प्रेजेंट। और इसका जब महाभारत खत्म होती है और उसके बाद जब अर्जुन
अब महाभारत में बहुत कुछ हुआ ना एक्चुअली। जो कौरव थे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रांग वेपन्स अर्जुन की तरफ फेंके थे, और कर्ण के साथ तो बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था, ये सबको पता है। और बट अर्जुन को भी कुछ हुआ नहीं, और बहुत बार बचे, बहुत कुछ हुआ, भगवान ने बचाया, बट अर्जुन को भी कुछ हुआ नहीं। और अब जब युद्ध खत्म हो गया, अब अर्जुन जो रथ से उतरने लगे थे, तो भगवान रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी इस तरह से मत उतरो, और थोड़ा सा जैसे कि साइड होके जैसी छलांग लगाते हैं, तो वो जो रथ होता है वो रथ जलकर राख हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो प्रोटेक्शन थी वो हनुमान जी की प्रोटेक्शन थी, और कुछ इतने सारे जो शस्त्र थे वो बचा के, जो शस्त्रों से बचाया था वो हनुमान जी की प्रोटेक्शन लेयर ने उनको बचाया था। और जैसे ही वो उतरते हैं और सब कुछ होता है, तो जो जो रथ है वो एकदम भस्म हो जाता है एक तरह से। तो जो हनुमान जी हैं वो भी लड़ते हैं, और उनको भी भगवान ने सर्विस दी थी इस युद्ध में भी। एक्चुअली रामायण के युद्ध में तो हनुमान जी वाज अ वॉर हीरो है ना, उन्होंने इतना कुछ किया, ही वाज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। और बट यहाँ पे उनका कोई एज अ विजिबल रोल नहीं था, बट ही हैड द सर्विस ऑफ हियर एज वेल। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कुछ ना कुछ तो सर्विस पा ही लेते हैं किसी चीज में तो हनुमान जी को भी, उन्होंने भी ये सर्विस इसमें पा ली थी। But the battle was just about to begin. It is understood from the above statement that the sons of Dhritarashtra were more or less disheartened by the unexpected arrangement of the military force by the Pandavas, who were guided by the direct instructions of Lord Krishna on the battlefield. The emblem of Hanuman on the flag of Arjun is another sign of victory, because Hanuman cooperated with Lord Ram in the battle between Ram and Ravan, and Lord Ram emerged victorious. Now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjun to help him. राम कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही भगवान राम है, और हनुमान भी वहां पे प्रेजेंट है। Lord Krishna is Ram himself, and wherever Lord Ram is, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. Therefore, Arjun had no cause of fear to fear any enemy whatsoever. And above all, the Lord of all senses, Lord Krishna, was personally present to give him directions. Thus, all good counsel was available to Arjun in the matter of executing the battle. In such auspicious condition arranged by the Lord for his eternal devotee lays the signs of assured victory. 1.1, 1.21, 1.22. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतन्निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् केर्मया स्थिता योद्धावम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. Arjun said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight, with whom I am and with whom I must contend in this great trial of arms. Although Lord Krishna is the supreme personality, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्णा, मैं देखना चाहता हूं कि मैं किससे युद्ध करने आया हूं, और जो ये जो रथ है, अब वो अपने रथ को दोनों आर्मीज के मध्य में, मिडल में लेके जाना चाहते हैं, और वो भी आगे जाके भगवान को कहेंगे कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं किससे लड़ने आया हूँ, तो प्लीज मेरे रथ को आप अंदर लेके चलिए, दोनों आर्मीज के बीच में। Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy, he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed here as infallible. तो जो भगवान हैं वो बहुत ही भक्त वत्सल हैं, और भक्तों से वो कंट्रोल हो जाते हैं, एक तरह से बंध जाते हैं भक्तों के प्यार से। और इसकी वजह से, क्योंकि अर्जुन भी भगवान का प्योर भक्त है, प्योर डिवोटी है, और इतना साख्य लेवल पे वो उनके साथ वो प्रेम है भगवान के साथ उनका, तो भगवान ये कह देते हैं कि मैं आपके रथ का सारथी बनूंगा, है ना। तो देखा जाए तो हम अगर मटेरियल
लाइफ में इसको सोच के देखें तो इट इज अ वेरी लोअर पोजीशन ना, कि लाइक ड्राइवर, आई विल बिकम योर ड्राइवर एंड यू आर द चैरिटियर एंड आई विल बिकम योर चैरियट ड्राइवर, है ना। और होता क्या है कि जब जब रथ में जो सारथी होते हैं उसको उसको बहुत कुछ करना होता है, मतलब वो भी साथ में युद्ध लड़ता है जो रथ में सवार होते हैं, है ना। तो उनके साथ क्या करना होता है उनको, जैसे कि मान लीजिए जो सारथी है, क्योंकि एक तो युद्ध हो रहा है और उसमें इतनी टेंस सिचुएशंस होती हैं, तो जो रथ पे बैठा होता है वो सारथी को पैरों से कई बार उनको डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, कभी कई बार किक करना पड़ता है कि जोर जोर से लातें मारनी पड़ती हैं कि अगर राइट पे लात बजेगी तो राइट पे जाना है, लेफ्ट पे लात बजेगी तो लेफ्ट पे जाना है, पीठ पे बजेगी तो क्या करना है, कभी कुछ और, कभी इस तरह से इस तरफ पैर रखना है कंधे पे, कभी उस तरफ पैर रखना है कंधे पे। तो अब जो युद्ध में ये सब कुछ होता है तो ये चीजें भी करनी पड़ती। आप सोच के देखिए कि भगवान जो है वो अर्जुन के सारथी का जो है वो रोल, सारथी का जो पोजीशन है वो लेने को तैयार हो जाते हैं। किस वजह से? उनको तो जरूरत नहीं है इस चीज को करने की या फिर ऐसी पोजीशन लेने की, तो वो अपने भक्त के प्रेम की वजह से, अपनी भक्त वत्सलता की वजह से, भक्त वत्सल है वो भगवान इतने, तो इसी वजह से वो इस पोजीशन को भी वो लेने को तैयार है। As charioteer, he had to carry out the orders of Arjun, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible, Achyut. Although he had accepted the position of a charioteer for his devotee, his supreme position was not challenged. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने कोई ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं कि वो भगवान, आपके भगवान तो अर्जुन के सारथी बन गए, तो कहाँ के भगवान? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ये लीला कर रहे हैं और अगर वो अर्जुन के सारथी बन रहे हैं तो उनके जो भगवान होने पे कोई क्वेश्चन कर सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। इसका एग्जांपल हम कृष्णा बुक में भी पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से भगवान जब अपनी बाल लीला करते हैं यहाँ पे धरती पे, और जब वो 3 महीने के होते हैं तो वो तो किस तरह से वो मिरेकुलस टास्क करते हैं, इतने सारे जो दानव आते हैं उनका वो वध कर देते हैं, छोटे होते ही वो गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। तो his position as the supreme personality of Godhead, his position as Bhagwan is never challenged and is never checked by the materialistic condition, because he is not material. He is supreme personality of Godhead, वो completely transcendental है। और so in that way we can say that he is supreme Lord. In all circumstances he is the supreme personality of Godhead, Rishikesh, the Lord of total senses. बस ये पढ़ करके हम खत्म करते हैं। The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. तो ये प्रेम का जो है रिलेशनशिप, इस तरह से आदान प्रदान भगवान करते हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी सिर्फ सेवा ही करते रहो और मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। वो हम इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रख सकते हैं अपनी लाइफ में कि वो अर्जुन के सारथी बने थे और किस प्रकार से वो अपने भक्तों से 1000 गुना ज्यादा रेसिप्रोकेट वो करते हैं। अगर हम 1% भी अगर उनकी तरफ अपना मुख करते हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ चलते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं, वो हमसे वो 1000 गुना ज्यादा खुश होंगे और वो 1000 गुना ज्यादा हमारे को वो और प्रेम करते हैं और वो हमारी तरफ वो और ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं। इस तरह से देखते हैं वो इतनी सालों बाद, इतने हजारों वर्षों और जन्मों बाद इस जो आत्मा है, जो सोल है, इसने अपना मुख मेरी तरफ किया है और वो बहुत खुश होते हैं इस चीज से। कोई भी अगर छोटी सी हम सर्विस करते हैं तो he takes great pleasure in his pure devotees assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. क्योंकि भगवान है, भगवान को तो कोई कौन ऑर्डर दे सकता है, पर वो खुश बहुत होते हैं अगर जब उनके जो भक्त हैं वो ऐसी पोजीशन लेते हैं, मतलब आउट ऑफ लीला करने के लिए, फिर कुछ और करने के लिए, कि जब वो उनको ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे कि हमें इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं दामोदर लीला में, कि जब
यशोदा मैया भगवान के पीछे छड़ी लेकर भागती हैं और वो कहती हैं ठहर जा, मैं तेरे को देखती हूँ, और फिर रस्सी से बांध देती हैं, भगवान के आंसू निकल आते हैं। वो कितना कितना ये प्रेम पूर्वक ये सारा जो पास टाइम है ये होता है, और भगवान बंध जाते हैं और बंधने के लिए वो अपने आप को मान जाते हैं कि मैं बंध जाऊंगा, और इस प्रकार से सारी लीला होती है। तो वो बहुत ऐसी लीला वो बहुत ज्यादा वो उसमें वो प्लेजर लेते हैं, ही टेक्स ग्रेट प्लेजर। Since he is the master, everyone is under his orders and no one is above him to order him. But when he finds that a pure devotee is ordering him, he obtains transcendental pleasure, although he is the infallible master in all circumstances. As a pure devotee of the Lord, Arjun had no desire to fight with his cousins, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhan, who was never agreeable to any peaceful negotiations. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding the unwanted war. तो हम अपने जो है भगवद गीता को आज का जो सेशन है उसको हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद भी अर्जुन एक दो श्लोक और आते हैं जिसमें अर्जुन ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो ये जो चैरियट है इसको हम अपने मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है इस युद्ध में, और ये जो चैरियट है उसको आप बीच में लेके जाइए। तो हम अगला जो सेशन है हम यहीं से शुरू करेंगे कि जब अर्जुन कह रहे हैं कि बीच में लेके जाइए, और उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, और अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, ये तो हम सबको पता ही है, बट क्या क्या रीजंस देते हैं अर्जुन युद्ध ना करने के, कि नॉन वायलेंस है और बहुत सारे रीजंस हैं, और आपको पढ़ के लगेगा कि ये तो सारे वैलिड रीजंस हैं, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए था। अर्जुन इतना अच्छा तर्क दे रहे हैं भगवान को कि ये तो सारे वैलिड रीजंस हैं कि इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, सारे लॉजिकल, कि मेरे को किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, मैं हत्या करके क्या करूंगा, मुझे कोई सुख नहीं पाना, मैं ये है वो है, सारा कुछ सारे वैलिड रीजंस होते हैं, और अर्जुन बहुत अच्छे से लॉजिकली भगवान के आगे रखते हैं। और उसके बाद भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम जो है अगले सेशन में ये पढ़ेंगे कि अब अर्जुन भगवान को क्या क्या एक्सक्यूज देने वाले हैं कि मेरे को युद्ध नहीं करना, आई एम सॉरी। तो हम आज का सेशन है जो है उसको हम यहीं पे विराम देते हैं उसको, और अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई टिप्पणी है तो वो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। तो यहाँ पे हम भगवद गीता का जो है फर्स्ट चैप्टर इसमें हम पहुंचा। अब हम देख रहे हैं कि पहले जो है वो दुर्योधन का सारा वार्तालाप हो रहा है द्रोणाचार्य के साथ कि यहाँ पे इतने सारे योद्धा हैं, मेरी तरफ इतने सारे योद्धा हैं, और धृतराष्ट्र का संजय को सवाल कि भाई उन्होंने क्या किया है ना, बैटलफील्ड में जाके क्या किया, और उसके बाद बहुत सारे रीजंस जो ये बताते हैं कि पांडवों की विजय होगी और किस तरह होगी, क्यों, और कि बहुत सारे साइंस हैं जो हमको मिलते हैं ना, जिसको हम कहते हैं, जैसे कि कई बार हम कहते हैं गुड ओमन्स होते हैं, जैसे इस तरह से साइंस हैं जो ये बताते हैं कि पांडवों की विजय होने वाली है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे इस सेशन को जो है वहां पे इसका अंत करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु।